Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm going to explain the 5th chapter of An Alien Hand. It is the story of Golu, the elephant baby and the crocodile. So let's have a start. Chapter number 5. Golu grows a nose. Long ago. The elephant had no trunk. बहुत दिनों पहले की बात है, हाथी के सूंड नहीं था. He had only a bulgy nose. उसके सिर्फ एक उभरी हुई नाक थी. As big as a boot. इतनी बड़ी जितनी कि एक जूता. He could wiggle it from side to side. हाथी उसे एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर लेता था. But couldn't pick up things with it. लेकिन उससे कोई चीज़ उठा नहीं पाता था. There was a baby elephant called Golu. गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा था. He too had no trunk, but only a bulgy nose, as small as a small boot. उसके भी सूंड नहीं था, सिर्फ उभरी हुई नाक थी, इतनी छोटी जितना कि एक छोटा जूता होता है. गोलू was full of questions. गोलू सवालों से, प्रश्न से भरा हुआ था. He asked his tall aunt, the ostrich, Why don't you ever fly like other birds? उसने अपने लंबी आंटी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग से पूछा, तुम दूसरे बर्ड की तरह उड़ती क्यों नहीं हो? Then he asked his tall uncle, the giraffe. फिर उसने अपने लंबे अंकल जिराफ से पूछा, What makes your skin so spotty? किस चीज़ ने तुम्हारे स्किन को इतना धब्बेदार बना दिया, या तुम्हारी स्किन इतनी धब्बेदार क्यों है? He asked his huge uncle, the hippopotamus, Why are your eyes always so red? उसने अपने बड़े वाले अंकल दरियाई घोड़ा से पूछा, तुम्हारी आँखें हमेशा लाल क्यों होती हैं? He asked his hairy uncle, the baboon, Why do melons taste like melons? उसने अपने बालों वाले अंकल लंगूर से पूछा कि तरबूजा तरबूजे की तरह क्यों लगता है? तरबूजे का टेस्ट तरबूजे की तरह क्यों होता है? The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions. शुतुरमुर्ग, जिराफ, दरियाई घोड़ा, लंगूर, इन लोगों के पास गोलू के प्रश्नों का, सवालों का जवाब नहीं था. गोलू is a naughty baby, they said. उन्होंने कहा कि गोलू एक नटखट बच्चा है. He asks such difficult questions. वो इतने मुश्किल सवालात पूछता है. One day, Golu met the manna bird sitting in the middle of a bush, and he asked her, What does the crocodile have for dinner? एक दिन गोलू एक मैना से मिला जो झाड़ी के बीच में बैठा हुआ था. उसने उससे पूछा कि मगरमच्छ डिनर में क्या खाता है. मैना ने कहा, Go to the banks of the great grassy Limpopo River and find out. मैना ने कहा, घासों वाले बड़े लिम्पोपो रिवर यानी नदी के पास जाकर पता करो. गोलू went home. He took 100 sugar cans, 50 dozen bananas and 25 melons. गोलू ने घर जाकर 100 ऊख, 50 दर्जन केला और 25 तरबूजे ले लिए. Then he said to his family, Goodbye, I'm going to the great grassy Limpopo River. फिर उसने अपने घर वालों को गुड बाय कहते हुए कहा, मैं घास वाली बड़ी लिम्पोपो नदी के पास जा रहा हूँ. I'll find out what the crocodile has for dinner. मैं पता लगाऊंगा कि मगरमच्छ डिनर में क्या खाता है. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. उसने कभी मगरमच्छ देखा नहीं था और जानता नहीं था कि वो कैसा दिखता है.
He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile?" उसकी मुलाकात एक अजदहा से हुई। उसने उससे पूछा, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है? What does he look like? वो कैसा दिखता है? What does he have for dinner? वो डिनर में क्या खाता है? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. अजदहा ने पेड़ की ब्रांच से अपनी कुंडली खोली लेकिन कुछ नहीं कहा। Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. गोलू ने अच्छे तरीके से ब्रांच में दोबारा कुंडली मारने में उसकी हेल्प की और उसे गुड बाय कहा। गोलू moved on, eating sugar cans, bananas and melons. गोलू ऊख, केला और तरबूजा खाते हुए चलता गया। After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. कुछ दिनों बाद वो घासों वाली बड़ी लिम्पोपो नदी के किनारे पर पहुंच गया। On the bank of the river, he saw a log of wood. नदी के किनारे उसने लकड़ी का एक लट्ठा देखा। It was really the crocodile who winked at him. ये सच में एक मगरमच्छ था जो उसको आंख मार रहा था। विंक मीन्स आंख मारना या कनखियों से देखना। Excuse me, said गोलू। गोलू ने कहा, Excuse me, have you ever seen a crocodile? गोलू ने उसी से पूछ लिया, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है? The crocodile winked again and lifted half his tail out of the mud. मगरमच्छ ने दोबारा देखा और अपनी आधी पूंछ को मिट्टी से उठाकर कहा, Come here, little one, said the crocodile, कि छोटे इधर आओ। Why do you ask such questions? I want to know. मुझे बताओ, तुम इस तरीके के प्रश्न सवालात क्यों पूछते हो? Come close, little one, for I am the crocodile. छोटे इधर आओ क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। और उसने मगरमच्छ वाले आंसू बहाए ये दिखाने के लिए कि ये सच है। गोलू was afraid. गोलू डर गया था। But he sat down on the bank and said, लेकिन किनारे पर बैठ कर बोला, You're the very person I was looking for. तुम ही वो आदमी हो जिसे मैं तलाश कर रहा था। Please tell me what you have for dinner. कृपया मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या खाते हैं। Come here, little one, and I'll whisper the answer to you, said the crocodile. मगरमच्छ ने कहा कि छोटे इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में जवाब दूंगा। गोलू put his head down close to the crocodile's snout, and the crocodile caught him by the nose. गोलू ने अपना सर मगरमच्छ के मुंह के पास किया और मगरमच्छ ने उसकी नाक पकड़ ली। I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. मगरमच्छ ने कहा, मुझे लगता है आज एक हाथी का बच्चा मेरा डिनर होगा। Let me go, you're hurting me, Mr. Crocodile, screamed गोलू। गोलू चिल्लाया, मिस्टर क्रोकोडाइल, मुझे जाने दो, मुझे तकलीफ हो रही है। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, If you don't pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. अजदहा जो धीरे धीरे गोलू के पीछे आ रहा था, नदी के किनारे आकर बोला, अगर तुमने उतनी तेज न खींचा जितनी तेज तुम खींच सकते हो, तो मगरमच्छ तुम्हें नदी के अंदर खींच ले जाएगा। गोलू sat back on his little haunches and pulled and pulled. गोलू अपने छोटे छोटे कुल्हों पर बैठकर खूब तेजी से खींचा। The crocodile slipped into the water and making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. मगरमच्छ ने भी खूब जोर लगा करके खींचा। वो पानी में फिसल गया और अपनी पूंछ से पूरे पानी को
लबड़िया दिया यानी गंदा कर दिया. Then the python coiled himself round the Golu's stomach and said, "Let us pull harder." तभी मगरमच्छ ने गोलू के पेट में कुंडली मार ली और कहा, चलो तेजी से खींचो. गोलू dug in all his four legs in the mud and pulled. गोलू ने अपने चारों पैर जमीन में गाड़ लिए और खींचा. The nose kept on stretching. नाक फैलती रही, बढ़ती रही. At each pull, the nose grew longer and longer and it hurt गोलू. हर मर्तबा खींचने पर नाक लंबी होती जाती और उससे गोलू को तकलीफ होती थी. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. नाक अब 5 फीट लंबी हो गई थी, लेकिन अब आखिर में वो छूट गई थी. गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo River to cool. गोलू एक बड़े से केले के पत्ते में अपनी नाक को लपेट कर बैठ गया और उसको घास वाली बड़ी लिम्पोपो नदी के अंदर लटका दिया ठंडा होने के लिए. Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. गोलू 2 दिनों तक बगैर कुछ खाए पिए बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि उसकी नाक ठंडी हो जाए और सिकुड़ जाए. It grew cool, but it didn't shrink. ये ठंडी तो हो गई लेकिन ये सिकुड़ी नहीं. At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. दूसरे दिन के आखिर में एक मक्खी ने आकर के गोलू के शोल्डर को डस लिया, उसके कंधे पर डस लिया. Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead. गोलू ने अपनी लंबी नाक यानी सूंड को उठा करके मक्खी को मार डाला. Advantage number 1, here's the python. You couldn't have done it with a small nose. पहला फायदा, अजदहा ने कहा, तुम इसे छोटी नाक से नहीं कर पाते. Try and eat a little now. अब थोड़ा बहुत खा लो. Golu put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. गोलू ने अपना सूंड उठाया और ढेर सारी घास तोड़ी, उसको अपने अगले पैर के सामने रखा और अपने मुंह में ठूस लिया. Advantage number 2, here's the python. You couldn't have done it with a small nose. फायदा नंबर 2, अजदहा ने कहा, तुम इसे छोटी नाक से नहीं कर पाते. Don't you think the sun is too hot now? तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत धूप हो रही है? Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. गोलू ने नदी के किनारे से कुछ मट्टी उठाई और उसको अपने सर पर लीप लिया. Advantage number 3, here's the python. You couldn't have done it with a small nose. अजदहा ने कहा, ये तीसरा फायदा है, तुम इसे छोटी नाक से नहीं कर पाते. Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. गोलू ने धन्यवाद कहते हुए मिस्टर पाइथन से कहा, थैंक यू, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली. मैं ये सब याद रखूँगा और मैं अब अपने घर जाऊँगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस story was about how an elephant got his trunk. I hope you enjoyed it. Keep it up, the girl is ahead of you.